Hello, my voice is audible. Yes, my audible. Yes, ma'am. You are audible. अच्छा, ये तुम लोग का होमवर्क था। नॉन सिक्योरिटी फॉर्म्स में फिक्स्ड इनकम एंड वेरिएबल इनकम सोचे हो? Yes, ma'am. हेलो हेलो, Yes, ma'am. हाँ सुनाई दे रहा है ना? हेलो बोलेंगे तो कुछ बोलो, नहीं तो अदरवाइज Yes, लगेगा मैं ma'am. लाइन हाँ, पे नहीं yes, हूँ। ma'am. अनम्यूट सुनाई दे करने रहा में है. थोड़ा टाइम वो हो जाता हम्म। Okay, non-securities. We yesterday we covered this different investment opportunities. We also discussed on what can be the different investment opportunities if an Indian investor want to invest his money, right? So there we have started about classification of investment. We saw that yesterday we covered this one, that investment can be classified into two categories basically. One is financial investments and another is real investment. Financial investment can be defined as investment in the form of what? Anyone? Just let's discuss whatever we covered yesterday. No answer. Asif? सिक्योरिटी फॉर्म में आप ओनरशिप Yes, ट्रांसफर कर ma'am. सकते हो. No, that is in securities and non-securities form. उससे पहले I'm talking about financial investments and real investments. Basic मैम two. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शेयर इक्विटी डेरिवेटिव्स. Okay. Investment in monetary form. Yes, investment in monetary forms, whereas real investment is in physical form. If you are investing your money, you will get an asset which is physical in nature, like land, real estate, or bullions, that is precious stones and metals, you can say, then antiques, etc. किसके पीछे से इतना नॉइज हो रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. जिसके तरफ से नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Yes, then we saw that financial investment can be divided into two categories again, that is security forms and non-security forms, right? Now, security forms are those forms of investment where ownership is transferable. That means if you are having some financial asset today, you can sell your financial asset to another person, and then what will happen? The ownership will get transferred from you to that person. So those types of investments are called security forms of investment, whereas non-security forms are those where the ownership is not transferable. That means if you are having a financial asset, that will only be in your name. You cannot sell your existing financial asset to another party. This is non-security form. So security forms, we also give some examples, that was shares, bonds, debentures, all these things. It is again divided into categories. Those security forms of investment which are having variable income, and another category is having fixed income. Now, variable income, we can say shares is the most appropriate example of that, where the dividend from the share are not fixed.
It may vary. That's why the income of the investor is variable in nature. Whereas if we are talking about fixed income, there we see that the income that the investor get from such investment avenues, they are fixed in nature. For example, bond we have seen, debentures, we can also say preference shares and all that. Then non-security forms, examples were fixed deposits, PPFs, NSC and all that, where the ownership is not transferable, right? Now here it is also categorized into fixed income and variable income, and your homework was just to think about all those sources which can give you fixed income and variable income under this non-security forms of investment. हाँ. Now I want some answer from you. क्या हो सकता है? हम फिक्स्ड इनकम में तो रेयर कॉइन्स, लाइफ इंश्योरेंस, गोल्ड, डायमंड. Again, you are talking about life insurance. No, ma'am. Ma'am, gold and diamonds, rare coins in fixed income, non-security form which is not transferable. Gold and diamonds. Gold and diamonds fixed income. ये तो ट्रांसफरेबल भी है. See, first of all, gold and diamonds will not come under the financial investment. They will go under real investment. Physical form में है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But अगर I गोल्ड और think डायमंड सारा काइंड ऑफ तुम हाँ, अब अगर तुम बोल रहे हो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स जो आए हैं वो सारा बॉन्ड्स के बारे में बोल रहे हो, दैट विल कम अंडर सिक्योरिटी फॉर्म. फिक्स्ड इनकम बॉन्ड हो गया वो, सो यू कैन सेल इट. उस बॉन्ड के साथ क्या होता है, गोल्ड का अटैचमेंट रहता है. अगर जैसे गोल्ड का भाव बढ़ता है जैसा होता है, इफ यू वांट यू कैन सेल इट एंड द ओनरशिप विल गेट ट्रांसफर टू अनदर पर्सन. लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म में है, तुमने गोल्ड डायमंड अभी खरीद के रखे हुए हैं, सो दैट इज अंडर रियल इन्वेस्टमेंट, है ना. नॉन सिक्योरिटी के फॉर्म में तो बोले ही हम लोग, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, पीपीएफ हो सकता है, एनएससी हो सकता है, फिर तुम्हारा जो एमआईएस हो सकता है, मंथली इनकम स्कीम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ये सारे चीज से हो सकता है. योर सेविंग्स अकाउंट इज ऑल्सो अ नॉन सिक्योरिटी फॉर्म, यू कैन से, जहाँ पे सेविंग्स में एक्चुअली इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी किया है बैंक्स ने कि क्या किया है, दे हैव लिंक्ड द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम विद द सेविंग्स अकाउंट. ठीक है, जैसे उसमें एक मिनिमम लिमिट वो लोग लगा दिया, सपोज 50,000 जैसा. ठीक है, अगर सपोज तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट में इफ यू आर हैविंग 1 लाख, तो वो लोग ऐसा किया है कि फर्स्ट 50,000 जो है दैट विल गिव यू एन इंटरेस्ट ऑफ अ सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट ओनली. above that 50,000, जैसे 1 लाख अगर है तो एक्स्ट्रा यू आर हैविंग 50,000 इन योर सेविंग्स अकाउंट एंड दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिटर्न which is actually linked with a fixed deposit. जैसे सेविंग्स में अगर मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 4% इंटरेस्ट द बैंक इज गिविंग यू, तो पहला जो 50,000 तुम्हारे पास है उसमें तुमको इंटरेस्ट मिलेगा 4%. ठीक है, उसके बाद 1 लाख है तो मोर 50,000 यू आर हैविंग, और उसमें बोला है अबाव 50,000 अगर तुम्हारे पास वहां है तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी उसमें से यू विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ अबाउट 4 है यहाँ सपोज 5%. ठीक है, ऐसे ऐसे करके आजकल बैंक्स कर दिए हैं. फिर 1 लाख के ऊपर और जाओ और उसमें कर दिए हैं कि 1 लाख के ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो दैट विल गिव यू अबाउट 4-5-6% सपोज. ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया है, सेविंग्स अकाउंट हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू सम इन्वेस्टमेंट्स, है ना. तो ये क्या हुआ, हेलो यस मैम. यस हो मैम. ना तुम लोग कनेक्टेड? ठीक है, यस मैम. ठीक. सेविंग अकाउंट पे तो मैम ऐसे भी इंटरेस्ट मिलता है ना मैम, तो वो हाँ investment ऐसे तो हुआ ही है ऐसे भी. मिलता है लेकिन बहुत कम है ना. यस मैम.
सेविंग्स अकाउंट में बहुत कम मिलता है आजकल। इवन तुम जाओ एसबीआई चले जाओ, बैंक ऑफ इंडिया चले जाओ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत कम हो गए हैं। आई थिंक एसबीआई सबसे कम हो गया है, 2.5 या 3 कुछ है, उसके बाद 3.5 है। तो पहले जो 4% था वो फिक्स था, अभी आरबीआई ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, इट इज नॉट रेगुलेटेड नाउ। तो इसीलिए बहुत सारा बैंक्स जो है अपने हिसाब से वो लोग कितना इंटरेस्ट देना है ऑन सेविंग्स अकाउंट दे आर डिसाइडिंग। तो ऐसे करके क्या किया है, जैसे कुछ कुछ अच्छा बैंक्स जो लोग कंपटीशन करने आ रहे हैं या न्यू टू द मार्केट, तो वो लोग कस्टमर खींचने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे आईडीएफसी। आईडीएफसी अभी सबसे अच्छा बैंक है इन द टर्म्स दे आर गिविंग मोर रिटर्न्स ऑन द सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट 1 लाख में दे आर प्रोवाइडिंग, तुम लोग का यहाँ पे सीनियर्स जो है ना 2-3 आईडीएफसी ज्वाइन किए हैं, तो वो लोग कुछ दिन पहले आए थे एज अ सेल्स मैनेजर। तो वो लोग आए थे कि अकाउंट खुलवाने के लिए तो वो लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा वो लोग दे रहा है। सो फर्स्ट 1 लाख में वहां पे मिल रहा है अबाउट 6%। ठीक है, सो यू कैन सी द डिफरेंस, कहाँ पे एसबीआई दे रहा है जस्ट 3% और आईडीएफसी इज गिविंग यू 6%। तो 1 लाख में 6%, अबाउट अबाव 1 लाख दे आर प्रोवाइडिंग 7%, है ना। तो अगर यही बैंक में तुम चले जाओ एंड टॉकिंग अबाउट सेविंग्स अकाउंट, तो सबसे कम्पिटिटिव रेट में यही लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट चले जाओ कोटक महिंद्रा, इट इज ऑल्सो वेरी गुड वन, वो भी बहुत अच्छा है। पहले यस बैंक भी दे रहा था, लेकिन बीच में यस बैंक का हालत तो एकदम खराब हो गया था, तो वो लोग उसको देना बंद कर दिया है। तो कोटक महिंद्रा इज वेरी गुड अगेन, वो लोग भी बहुत अच्छा ये देता है, सर्विसेज ऑफ कोटक महिंद्रा इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ऐसा हो गया है जहां पे अब नाउ सेविंग्स अकाउंट ऑफ कन्वर्टेड इनटू सम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। और तुम अलग से अगर फिक्स डिपॉजिट करोगे और ऐसे सेविंग्स अकाउंट में रखोगे, इन दोनों का क्या है मालूम है तुम लोग को? दोनों का डिफरेंसेस क्या है? नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स and this kind of savings account which is giving a interest rate which is compatible with that of the fixed deposit. What is the difference between two? 3%. नहीं, वो नहीं, फायदा क्या हो सकता है? जैसे तुम अलग से फिक्स डिपॉजिट स्कीम, अगर किसी बैंक के वेबसाइट में चले जाओ, फिक्स डिपॉजिट स्कीम में चले जाओ, तुम लोग का एक और टास्क मैं दे रही हूँ, गो आज जैसे क्लासेस खत्म हो जाएंगे, कुछ कुछ बैंक का वेबसाइट खोलोगे, ठीक है? खोलने के बाद देखोगे उन लोग का क्या क्या है, सेविंग्स अकाउंट के बारे में क्या है, कितना परसेंट है। हालांकि ये तुम लोग का एसटीपी में दूंगी, उसमें बहुत अच्छे से वो सारा डिटेल्स आ जाना चाहिए, क्या सेविंग्स अकाउंट में कितना दे रहा है अभी का सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि प्लेसमेंट कंपनीज आएंगे तो तुमको प्रेजेंट सिनेरियो पूछेंगे, नॉट अबाउट द ट्रेडिशनल वन जो कि पहले से था और कॉमन है। तो तुमको सारा बैंक्स के वेबसाइट में जाना है, वहां से जाके ढूंढना है कि कौन क्या सेविंग्स इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस तरीके से दे आर डिफरेंट। उन लोग के पास अगर फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स भी है तो वो कितना परसेंट में दे रहे हैं, ठीक है, समझे? तो ये फिक्स डिपॉजिट वाला जो है, अगर तुम फिक्स डिपॉजिट करते हो इन अ पर्टिकुलर बैंक एज वेल एज उस बैंक का सेविंग्स अकाउंट जहां पे नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली इट इज द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिविंग ऑन द सेविंग्स अकाउंट आल्सो, तो ये दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? एनी आइडिया, एनीबॉडी? अंतर हो जाएगा मैम कि फिक्स डिपॉजिट अगर कर रखे हैं तो उससे फंड्स निकाल नहीं सकते हैं जब तक वो एक जिस पीरियड के लिए फिक्स डिपॉजिट किए हैं वो पूरा हो जाए। यस, और हाँ देन और सेविंग अकाउंट में है कि वो ऑटोमेटिक स्विच होता है कि अगर इतना एक फिक्स्ड अमाउंट से ऊपर गया तो हो जाता है, उसके बाद उससे जब भी निकालना चाहे तो स्विच कर सकते हैं उससे। हाँ, तो दैट इज मोर फ्लेक्सिबल। अगर तुम्हारा इमरजेंसी भी हुआ तो तुम वहां से निकाल ले सकते हो, उसमें क्या होगा, अमाउंट खाली घसका के नीचे आ जाएगा और एज पर द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल दैट विल बी अप्लाइड टू इट, है ना। वेरएज अगर तुम फिक्स डिपॉजिट करते हो तो उसका बहुत सारा है कि उस टाइम पीरियड से पहले तुम निकाल नहीं सकते हो, निकालोगे तो उसमें पेनल्टी लगता है। पेनल्टी ये हो जाएगा कि आइदर तुमको ज्यादा
कुछ 1% पे करना पड़ेगा। यूजुअली वो नहीं होता है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे घट जाता है। जितना तुम पहले था कि इतना तुमको मिलेगा, 1 साल रखोगे, सपोज तुम 1 साल से पहले 10 महीने में निकाल लिए, तो उसमें वो बोलेगा कि अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10 महीने का है दैट विल गेट एप्लीकेबल। ये दिक्कत है। Another thing, you have to go to the bank physically to sign for encashing your fixed deposit. This is also a very cumbersome problem, है ना? तुमको फिजिकली जाना होगा और करना होगा, whereas तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट में है तो कुछ है नहीं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दिस फ्लेक्सी स्कीम। बहुत सारा है, HDFC शायद आई फ्लेक्स करके कुछ है, उसमें भी देख लेना, बहुत सारे जगह पे ऐसा है। पहले से भी था, अभी ये लोग कर दिया है IDFC एंड ऑल दैट, वो लोग सेविंग्स अकाउंट में ही परसेंटेज दिखाने लगे हैं। और HDFC एक 2 साल पहले भी HDFC ICICI क्या किए थे, वो लोग अलग ही स्कीम बना के रखे हैं कि इसमें तुमको अकाउंट को ट्रांसफर करवाना है, उसका नेचर ऑफ द अकाउंट विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू दिस नेचर, और उसके साथ ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट को जोड़ दिए थे। तो ये तुम लोगों को थोड़ा स्टडी करना है और बनाना है प्रेजेंटेशन ऑन दिस। ग्रुप तुम लोग बनाए हो? नॉट। नहीं मैम, आज बन ठीक जाएगा। है, ठीक है, बन जाएगा, कोई बात नहीं। आज शाम तक तुम लोग क्या करोगे, जो CR है, CR आई थिंक आकाश आनंद एंड ये श्रेया, तो ये इन लोग के पास श्रेया, नाम दे देना। श्रेया। ये लोग ग्रुप में क्या, उसमें क्या करेंगे, ग्रुप 1 करके लिखेंगे उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं। तो ऐसे ऐसे करके सारे ग्रुप्स का बना देंगे। 19 स्टूडेंट्स यू आर इन टोटल इन द मेजर फाइनेंस, ठीक है? तो 19 डिवाइडेड बाय 4, कोई चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, लेकिन 4 ही मैक्सिमम रखना, ठीक है? 2 3 यू कैन आल्सो कीप, देयर इज नो इश्यू इन दैट। अच्छा, तो नॉन सिक्योरिटी फॉर्म्स में ये फिक्स्ड इनकम और वेरिएबल इनकम का क्या हुआ? गोपाल चुपचाप है। आशुतोष? मैम वही हम भी देखे हैं, जैसे फिक्स्ड में लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है, वेरिएबल में गोल्ड डायमंड ये सब दे दिया है, रेयर कॉइन दिया है, कहाँ दिया है? मैम कहाँ लैंड दिया? नहीं आएगा फिक्स्ड में, मैम लैंड गूगल पे मैम। अरे गूगल- अपना दिमाग लगाओ, गूगल में गलत रहता इंश्योरेंस पे कहाँ से इंश्योरेंस में फिक्स्ड इनकम आ रहा है? मैम वेरिएबल में तो गोल्ड आ जाएगा, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है ये लैंड वगैरह में। हाँ, वो तो रियल इन्वेस्टमेंट हो गया, ये है फाइनेंशियल ये इन्वेस्टमेंट। ये आपको वेरिएबल से हो गया, बिकॉज ये सब फिजिकली फॉर्म है, बट ये सब का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। बट फिक्स का वो कंफ्यूज कर देना है, फिक्स में क्या हो सकता है, नॉन सिक्योरिटी फॉर्म। नॉन सिक्योर, अच्छा PPF का क्या है? PPF के बारे में मालूम है? वो तो फिक्स्ड है, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ, तो वो अगर देखो, दिस इज ऑल्सो नॉन सिक्योरिटी। अगर तुम PPF आज अकाउंट खोलते हो तो उसमें जो है परसेंटेज उसमें रहेगा। सपोज जितना अमाउंट तुम आज उसमें डाले हो उसका अगेंस्ट में सपोज 12% अगर वो लोग दे रहे हैं, अभी तो बहुत घट गया है, 8% शायद वो लोग दे रहा है और PPF है। यस मैम, पीपीएफ आ गया फिक्स्ड में। हाँ, तो पहले अगर तुम आज जाके 1 लाख करते हो तो अगर इस टाइम प्रिवेलिंग रेट ऑफ PPF का भी जो रेट है वो भी वेरी करता है, लेकिन अगर आज तुम 1 लाख किए PPF अकाउंट में डाले, उसके साथ 8% विद गेट लिंक्ड, और 15 साल तक जब तक वो PPF अकाउंट 15 ईयर से पहले तुम उसको तोड़ नहीं सकते हो, तो वो जब तक चलेगा 15 ईयर्स के लिए तुमको वो 8% इंटरेस्ट वो तुमको देता जाएगा फिक्स्ड। जब तुम कर रहे हो Yes, उस sir. टाइम जो PPF का जो इंटरेस्ट प्रिवेलिंग रेट है उसी रेट में तुम्हारा फिक्स्ड हो जाएगा। वेरएस वेरिएबल क्या होगा? लैंड इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सब। फिर तुम लोग उधर आ रहे हो। फिजिकली फॉर्म तो होता है, बट हाँ, अरे ऊपर
थोड़ा कंफ्यूजन है मैम रियल इन्वेस्टमेंट और नॉन सिक्योरिटी फॉर्म में। क्यों? ये तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के नीचे आ रहा है, सिक्योरिटी फॉर्म, नॉन सिक्योरिटी फॉर्म, है ना। रियल अलग है, रियल मतलब फिजिकल फॉर्म में है, फिनेंशियल अलग है। फिनेंशियल के नीचे ही हम लोग दोनों उसमें डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो नॉन सिक्योरिटी फॉर्म के मैम लैंड में जो नॉन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी फॉर्म बोलो। मैम लैंड तो रियल एस्टेट में ना हो गया, हाँ तो वो रियल लेकिन इन्वेस्टमेंट हो हम लोग गया। फिनेंशियल में इसमें क्यों खींच ला रहे हो? नॉन सिक्योरिटी फॉर्म में हम लोग को वेरिएबल और फिक्स नहीं समझ में आ रहा है। सिक्योरिटी फॉर्म में तो वेरिएबल और फिक्स समझ में आ गया, लेकिन इसमें नहीं आ रहा समझ। हाँ तो नॉन Non-security. सिक्योरिटी फॉर्म में देखो, नॉन सिक्योरिटी फॉर्म हो गया, पहले ये देखना है नॉन सिक्योरिटी फॉर्म हो गया जहां पे योर ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। एग्जाम्पल्स कैन बी फिक्स्ड डिपॉजिट, examples can be PPFs, example can be monthly income scheme, example can be savings account, savings deposits, all this, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे टू पार्ट्स में। अब देखो फिक्स्ड इनकम हम लोग कहाँ से पाएंगे, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पीपीएफ, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अभी तुम लोग पढ़ोगे उसके ऊपर तब तुमको समझ में आएगा, उसके ऊपर कुछ रिसर्च नहीं किए हो, इसीलिए। पीपीएफ में क्या होता है, आज अगर हम अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाना होता है बैंक में जाके, ठीक है, तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, और वो उस तुम्हारे नाम का पीपीएफ तुम दूसरे के नाम पे नहीं कर सकते। उसमें नॉमिनीज हो सकते हैं लेकिन तुम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। जॉइंट भी नहीं होता है, सिंगल होता है। अब उसमें देखो जॉइंट हो सकता है प्रोवाइडेड उसमें कुछ रिलेशन हो, उसमें दिया रहेगा, बट यू कैन नॉट हाँ नॉमिनीज होंगे। जॉइंट किसी किसी में मैंने देखा है उसमें कुछ है प्रोविजंस आर देयर और लिखा रहता है, उस कंडीशन को यू हैव टू फुलफिल, अदरवाइज स्ट्रिक्टली वो सिंगल है एंड नॉमिनी रहेगा। अगर तुम्हारा डेथ हो जाता है तो तुम्हारा पीपीएफ अकाउंट का पूरा फंड विल गो टू द नॉमिनी। अब उसमें देखो क्या होता है, जैसे आज अगर हम इस साल अगर हम वहां पे पीपीएफ अकाउंट में डालते हैं जितना अमाउंट, सपोज 1 लाख आई एम डिपॉजिटिंग इन माय पीपीएफ अकाउंट टुडे, और पीपीएफ अकाउंट एक बार खोल दोगे दैट अकाउंट विल गो फॉर 15 इयर्स, ठीक है। तो आज अगर मैं डाल रही हूँ जिस प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट रहता है, सपोज अभी पीपीएफ अकाउंट के साथ अगर तुम इन्वेस्ट करो यू आर गोइंग टू गेट 8%, तो उस 8% वो फिक्स्ड हो जाता है, जो भी हो। अभी और घट गया है, 7.5 हो गया अभी 7.1। ठीक है। जितना भी प्रिवेलिंग रेट है दिन ब दिन तो गिरते ही जा रहा है। बहुत पहले कुछ साल पहले इट वाज 12%, बहुत अच्छा था, उसके बाद घट के फिर आया कुछ महीना पहले शायद 8% मैंने देखा था, पिछले साल होगा इस टाइम, अभी और घट गया है। तो ये जो प्रिवेलिंग रेट है उस रेट के साथ जैसे तुम इन्वेस्ट करोगे वो रेट तुम्हारे साथ फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा उस 1 लाख में यू विल गेट 7.1%। अब मानो एक महीने के बाद प्रिवेलिंग रेट ऑफ पीपीएफ गिर के और 6.5 हो गया, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो है वही तुमको मिलेगा, 7.1% जिसमें तुमने किए हो वही तुमको मिलेगा इंटरेस्ट इन द पीपीएफ अकाउंट। इट विल नॉट वैरी विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? सो दैट विल गिव यू अ फिक्स्ड इनकम। मैम वही फिक्स्ड इनकम होगा ना, जिस समय हम लोग हाँ, जिस टाइम तुम उसमें डिपॉजिट कर रहे हो, जो बना रहे हो, उसी टाइम का रेट रहेगा, रेट लगेगा। यस। मैम साइड में दे दीजिए। हाँ क्या? हेलो, असाइनमेंट वॉइस ब्रेक कर रहा है। ये बोल रहा है कि उस टॉपिक पे असाइनमेंट ही दे दीजिए मैम। हाँ हाँ वही रहेगा, असाइनमेंट रहेगा डिटेल्स में, जहाँ पे तुम लोग जाके पढ़ोगे और एक करोगे। आज मैं उसमें क्लासरूम में डाल दूंगी क्या क्या करना है ग्रुप वाइज। यस मैम। बिकॉज कि अभी हम लोग हाँ ग्रुप में अभी सबके पास काफी टाइम हो गया, जैसे कल से पबजी बैंड हो गया मैम ना, इसलिए सबके पास बहुत टाइम हो गया। तो अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ ना, पूरा टाइम जो है पढ़ाई अच्छा, क्या लिखाई में बोला? लगाओगे। हाँ। अच्छा, काफी now सदमा let's लगा है। come on to this.
वेरिएबल इनकम में, हाँ हाँ हेलो। मैम मैम जैसे कि मैम वो पीपीएफ में जैसे करवाए, तो अभी मान लीजिए 7.1 पे हम लिए, तो इस रेट पे वो मिलेगा हमको। तो अगर इन मतलब कि वो भी जब अगर कुछ टाइम के बाद अगर वो रेट इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तब तो हमारे लिए वो लॉस है ना मैम, तब भी तुमको 7.1 ही मिलेगा। हाँ, बढ़ने का चांसेस कम है, इतना सोचना। ओके मैम। दिन ब दिन वो घटता ही जा रहा है। यस मैम। हाँ, बढ़ने का चांसेस आर नेग्लिजिबल, इसीलिए तो सब जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम जो है वो गिरते जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैक्टर्स है विच आर लिंक, ठीक है। बाद में हम लोग उसमें देखेंगे, बहुत सारा फैक्टर्स है जो कि ये सारा इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, आप बोलो वेरिएबल इनकम वाला कौन सा हो सकता है? फिक्स डिपॉजिट हो सकता है क्या? एफडी पे तो इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है ना मैम। रहता है। थोड़ा सा सोचो। अच्छा, वो डिपेंडेंट है ना ऑन टाइम? यस मैम। हाँ, यही वाला पॉइंट यस सोचना था। टाइम पीरियड के ऊपर वो डिपेंडेंट है कि नहीं? एक साल के लिए यस मैम। तुम कर रहे हो तो दैट विल गिव यू अ फिक्स्ड इनकम, लेकिन एक साल के बाद, एक साल एक महीना करोगे तो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, एक साल एक साल से 2 साल के बीच होता है तो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, एक साल से कम होता है फॉर 6 मंथ्स, दैट आल्सो गिव यू डिफरेंट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इनकम इज वेरिएबल। और सबसे बड़ी बात, जो पेनल्टी वाला बात मैंने बोला, कि अगर तुम एक साल के लिए कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक इंटरेस्ट रेट है, डेफिनेटली वो फिक्स्ड है, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट तुम उससे पहले निकाल लेते हो किसी भी इमरजेंसी में आके, देन ऑल्सो तुम्हारा इनकम विल वैरी। नाम उसका फिक्स्ड डिपॉजिट इसलिए है बिकॉज उसका इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे ही तुम्हारा टाइम विल गेट वेरीड, द इनकम विल ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंगली। वेरएज पीपीएफ में ऐसा नहीं है। पीपीएफ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुम आज डिपॉजिट कर रहे हो, दैट विल कंटिन्यू फॉर 15 years। जब तक तुम उसको ब्रेक नहीं करते हो, इवन आफ्टर 15 years, और भी 5 साल उसको चलाने का है प्रोविजन, यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 20 years, 20 to 25 years। लेकिन 15 years के बाद तुम अगर उसको ब्रेक करोगे, कोई पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं लगता है, और तुम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुम किए हो, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट विल बी फिक्स्ड, ठीक है, उसमें वेरी नहीं करता है। Whereas fixed deposit में it depends on the time, 10 year। समझ में आया? अब यस हम मैम। हेलो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। हाँ हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? तो इसमें तो हाँ बॉन्ड से भी होंगे ना मैम? बॉन्ड्स हो गया, ट्रेजरी बिल में हो गया, मनी वो मार्केट इंस्ट्रूमेंट मैम। सिक्योरिटी फॉर्म हो गया वो कौन सब। बोल रहा है? तो न अमित अमित मैम। अमित। अमित अमित अच्छा, कुमार अमित गल्ला बताओ। अमित, yesterday we बताओ। discussed about security form। अच्छा, पहले अमित बोलो, सिक्योरिटी फॉर्म नॉन सिक्योरिटी फॉर्म में क्या अंतर हो गया? हेलो। हाँ, yes, you are audible, you can say। ऑडिबल है, बोलो अमित। हेलो। हाँ अमित, क्या मैम? you are audible, you can say। हेलो। चलो लेट्स कंटिन्यू। ईटीएफ क्या होगा मैम? ये सिक्योरिटी फॉर्म होगा, नॉन सिक्योरिटी होगा? ईपीएफ, ईपीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ। अच्छा, सब हम यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है, कुछ तुम लोग भी काम करोगे, राइट? सोचना है इसके ऊपर ही पूरा, या तुम लोग का वो एसटीपी है, प्रेजेंटेशन है, वो सेशन मैंने बनाया है, तो कुछ तुम लोग रिसर्च करो, अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करो, जितना यूज करोगे तुम्हारा दिमाग का सोचने का एबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है? तो कुछ तो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दीजिएगा मैम, कुछ बुक से या कुछ पीडीएफ वगैरह की। नेट पे तो बहुत चीज है पर उसमें उलझ के रह जाए।
हाँ, नेट में बहुत कुछ है। मेरे पास एक ई बुक नहीं, मैंने एक स्टडी मटेरियल तुम लोग के लिए किए हैं, दैट आई विल शेयर, ठीक है। ऑलराइट। पीपीटी तो दे ही देंगे, साथ में एक इसमें भी है, पीडीएफ में भी एक स्टडी मटेरियल मैंने ऐसे ही बनाया है तुम लोग के लिए, तो वो भी एक बार देख लेना। ये सारा चीज उसी के फॉर्म में है। देखो, नॉन सिक्योरिटीज फॉर्म में हो गया, क्या क्या आ सकता है, रिटर्न्स आर लो। देन इसमें नॉन सिक्योरिटी फॉर्म्स में क्या है, सेफ्टी या लिक्विडिटी ज्यादा है। देन तुम्हारा ये सारा एफडीज के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन सिक्योरिटी फॉर्म। फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, पीपीएफ हो गए, सेविंग्स अकाउंट हो गए। तो ये सारे में यू विल सी दैट सेफ्टी इज मोर, ठीक है। लिक्विडिटी तो है, टैक्स एडवांटेजेस किसी किसी में मिलता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स में ही टैक्स एडवांटेज मिलता है। फॉर 5 years देयर आर सर्टेन स्कीम्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट दैट विल गिव यू टैक्स एग्जेम्पशन। सिमिलरली पीपीएफ जो है वो टैक्स, उसमें भी टैक्स नहीं लगता है। नेशनल सेविंग स्कीम है, उसमें भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये सब में रिटर्न है लो। जैसे सेफ्टी तुमको ज्यादा देगा, ऑब्वियसली यू विल सी दैट रिस्क आर लेस, तो रिटर्न इज ऑल्सो लेस, है ना। इसमें हम डिटेल, ये तो सब लिखा ही हुआ है, यू जस्ट गो थ्रू इट। और इसके ऊपर तुम लोग को असाइनमेंट अब करना है, जो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से। पहले वंस यू टेल मी द ग्रुप्स। कल भी मेरा क्लास होगा क्या? नहीं, कल नहीं है शायद, इसका नहीं है, इंश्योरेंस का होगा। अच्छा, मैं आज ही तुम लोग को एक बार बता देती हूँ क्या करना है, ठीक है। उसमें मैं लिख के आज दे दूंगी असाइनमेंट। तुम लोग को क्या करना है, सारा ग्रुप्स जो है अच्छे से सुनो। सुनाई दे रहा है? वी आर कनेक्टेड? यस मैम। यस मैम। यस, ठीक है। तो सारे ग्रुप में अब करना है, तुम लोग का नाम दोगे ऊपर में, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। कोई इंडियन इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और उसके साथ देयर एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। मानो तुम इन्वेस्टर हो या तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टर आया है, ये एज्यूम कर लेना है। सभी ध्यान से सुनो, उसके बाद वो जो काम दिए हैं उसमें से अलग नहीं हो जाना चाहिए। सपोज तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टर आया है, तुम किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते हो, दैट इन्वेस्टर वांट टू नो, उसके पास 1 crore रुपीज है, वो आके बोलता है कि मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें और किसका क्या फायदा है, ठीक है। तो वो ये जानना चाहता है कि मेरा 1 crore रुपए जो आया है, मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इन इंडिया, इन डिफरेंट एवेन्यूज विच आर अवेलेबल ओनली इन इंडिया। बाहर में नहीं अभी ये करना है, इंडियन अपॉर्चुनिटीज को ही हम लोग देखेंगे। अब उसको एक डिटेल रिपोर्ट तुम लोग को बना के देना है, जहां पे डिफरेंट एवेन्यूज के बारे में यू विल टॉक अबाउट, कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है, अच्छे से कैटेगराइज कर लेना। और जैसे पीपीएफ अगर लिखोगे, ऊपर लिखोगे पीपीएफ, उसके नीचे दो बाइफर्केशन, 2 कॉलम्स कर देना है। पीपीएफ का बहुत सारा एडवांटेजेस भी है, बहुत सारा डिसएडवांटेजेस भी है। सिमिलरली सारा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज का कुछ कुछ एडवांटेजेस आते हैं, डिसएडवांटेजेस आते हैं, ठीक है। तुम लोग का काम है, योर वर्क इज to give a very clear picture to that investor regarding the different advantages and disadvantages of each investment avenues, ठीक है। ये तुम लोग का काम है, समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। और एक ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप का वो मिलना नहीं चाहिए। एक ग्रुप का मेंबर्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होगा वो ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए। मैम वो ये दूसरे सही है। ग्रुप के, एक सेकेंड, दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के साथ मैच नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, कुछ कुछ मैच करेंगे जो फंडामेंटल है, लेकिन वो मैं देखूंगी तो समझ जाऊंगी क्या है, ठीक है। वो तो सब सारे ग्रुप मेंबर्स अब आपस में ग्रुप में मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो ग्रुप प्रेजेंटेशन है। तो उन लोग का दूसरे के साथ नहीं मैच होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ योर वर्डिंग्स, इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग। वो सभी का अलग अलग होना चाहिए। बहुत सारा ग्रुप तो नहीं होगा, अलग होगा। तो मैं वही देखना चाहती हूँ जो एकदम बेस्ट ग्रुप है, उसको कुछ अलग से मिलेगा,
ठीक है ना? यस मैम। ओके, तो ये सारा हो गया डिपॉजिट्स। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन सिक्योरिटी फॉर्म्स में क्या क्या है, यू कैन सी बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, ये सारा नॉन सिक्योरिटी में है। जो बोल रहे थे कि सिक्योरिटी नॉन सिक्योरिटी में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये सारा हो सकता है। यस मैम। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स, हाँ ये फिक्स डिपॉजिट्स इफ यू विल सी देन बैंक्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग, whereas the corporate sector is also providing fixed deposits, ठीक है। इसका भी ओनरशिप नहीं होगा सिमिलरली लाइक अदर फिक्स डिपॉजिट्स की तरह। देन गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स है, पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गया, ये सारा नॉन सिक्योरिटी फॉर्म्स में आएंगे। सिक्योरिटीज में ये बोल ही दिया है कि ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तो उसमें देखो एक बार टाइम्स ऑफ सिक्योरिटीज में देखो क्या क्या आ सकता है। गिल्ड फंड, एक वर्ड तुम लोग सुनोगे, गिल्ड फंड। गिल्ड फंड किसको बोलते हैं? विच आर डेब्ट सिक्योरिटीज issued by government और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, इसको बोलते हैं गिल्ड फंड। गिल्ड फंड इज टुडे बहुत अच्छा गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू यू कैन सी, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेफ्टी ह्यूज, वो सारी चीज को गिल्ड फंड बोले जाते हैं, टेक्निकल टर्म। ठीक है, ये गिल्ड फंड के नीचे ट्रेजरी बिल आ सकता है, इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यू नो। और देन सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज बॉन्ड्स इसमें आ सकते हैं, जिसमें लॉन्गर देन 1 ईयर एंड कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे बॉन्ड्स आ सकते हैं गिल्ड फंड के नीचे, बट डिवेंचर्स विल नॉट कम, ठीक ना? डिवेंचर्स विल नॉट कम अंडर गिल्ड फंड, ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स विल कम। सेमी गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज, सेमी गवर्नमेंट का भी हो सकता है। सेमी गवर्नमेंट मतलब जैसे इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, ये लोग भी कुछ कुछ सिक्योरिटीज इशू करते हैं। हाउसिंग बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी करते हैं, म्यूनिसिपल उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल नोट्स, ठीक है। ये सारा चीज जो है ये भी गिल्ड फंड के नीचे आएगा। ओके, अभी मैं थोड़ा सा ये कर रही हूँ, या और 2 मिनट पढ़ा लेती हूँ, ठीक है। लास्ट 5 मिनट्स आई विल गिव ऑल ऑफ यू टू मार्क योर अटेंडेंस। 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, या रादर यू कैन पुट योर अटेंडेंस नाउ, 2 मिनट्स हार्डली इट विल टेक, ठीक है। मार्क योर अटेंडेंस। हेलो, वी आर कनेक्टेड? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, put your attendance, put your attendance. हो गया सबका अटेंडेंस कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। ऑलमोस्ट। हो गया ना? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हम लोग क्या देख रहे थे? सिक्योरिटी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग देख रहे थे, जिसका फर्स्ट कैटेगरी में आता है गिल्ड फंड। दैट मीन्स all securities which are issued by either government bodies or semi government bodies, they are gilt fund, जिसमें ट्रेजरी बिल्स आ सकते हैं। दिस इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम
on behalf of the central government is RBI. They are actually issued by RBI on behalf of central government. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है वो, लेकिन RBI उसको इश्यू करता है on behalf of the central government. This is treasury bill. उसके बाद हम लोग देखे हैं सेंट्रल मैम गवर्नमेंट। पीछे वाले स्लाइड पे जरा जाएंगे। यहाँ, हाँ बोलो। ये ग्रेटर इक्वल टू बीच में क्या लिखा हुआ है मैम? ये ग्रेटर नहीं, which implies है, इक्वल टू और ये साइन है, इसका मतलब है which implies, ठीक है ना, इसका मतलब which implies मतलब ये जो सेंटेंस हम लिखे हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे डेब्ट सिक्योरिटीज बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक लाइन में बोल सकती हूँ गिल्ड फंड, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है पब्लिक बोरोइंग्स ऑफ इशूइंग गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, अच्छा यहाँ सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी देख लिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, हाउसिंग बोर्ड, ये सारे चीज आ जाएंगे गिल्ड फंड के नीचे। नेक्स्ट वन हम लोग देख रहे हैं कॉर्पोरेट डिवेंचर्स। पहले में गिल्ड फंड में था गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नेक्स्ट कैटेगरी में वी कैन डिवाइडेड इनटू कॉर्पोरेट डिवेंचर्स। ठीक है, जैसे सारे डिवेंचर्स बॉन्ड्स टाइप ही सेम थिंग है, they are only issued by the corporates you can say, and risk is more, so return is also more in this case. तो ये हो गया सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑल्सो अ सिक्योरिटीज फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें देखो कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी के फिक्स के नीचे हम लोग बोल रहे थे, ये तो तुम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है, आई विल जस्ट ब्रश अप वंस अगेन। इसमें डिविडेंड इज पेएबल आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हम लोग को मालूम है क्या होता है, पहले प्रेफरेंस इज गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर्स व्हाइल पेइंग द डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, प्रेफरेंस में क्यूमुलेटिव होता है, दैट मीन्स कंपनी अगर एक साल लॉस करती है तो उस साल अगर किसी को डिविडेंड नहीं दिया और नेक्स्ट ईयर अगर इट इज मेकिंग अ प्रॉफिट, तो पुराना साल का जो डिविडेंड है उसको भी पे किया जाता है टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड देन द करेंट वन। ये सारा 2 साल का जितना भी क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स उसको क्लियर करने के बाद ही द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट इट्स डिविडेंड। ठीक है, ये तो हम लोग को सब मालूम है, दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस। देन इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, दिस दे आर द ओनर्स, दे बेयर द रिस्क एज वेल एज दे एंजॉय द रिवर्ड्स। ठीक है, नाउ दे आर ओनर्स ऑफ रेसिड्यू। शेयर होल्डर्स इसमें क्या करते हैं, वोटिंग राइट उसके पास है, वेयरएज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। इसमें डिविडेंड्स फिक्स नहीं होते हैं, दे आर डिसाइडेड by the board of governors from time to time while framing the dividend policy। जब पॉलिसी बनाया जाता है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए बनाया जाता है और उसमें तय होता है उस साल में कि कितना परसेंट ऑफ डिविडेंड विल बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेयरएज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए वो तय नहीं होता है, वो पहले से ही फिक्स्ड है एंड दैट अमाउंट हैज टू बी पेड। एंड सो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस यू नो। नाउ यहाँ देखो रियल इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। बेसिक क्या क्या हो सकता है रियल इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और एसेट्स दैट हैव अ रीसेल वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल इन्वेस्टमेंट के अंदर में गाड़ी नहीं आएंगे, मशीनरीज नहीं आएंगे, ऐसा कोई चीज नहीं आएगा जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल, जिसका वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, है ना। अगर तुम मशीनरी खरीदे आज और यूज कर रहे हो या यूज भी नहीं कर रहे हो, नया के नया रखा हुआ है, स्टिल ऑल्सो उसका रीसेल वैल्यू उतना नहीं मिलेगा या उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, जितने में खरीदे हो उतना भी नहीं मिलेगा। नए के नए मशीन रखे हुए हैं, स्टिल इट इज एज्यूम दैट विद टाइम इट्स रीसेल वैल्यू गोज डाउन, तो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एट ऑल। इन्वेस्टमेंट वही होगा जहां पे तुम अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर दैट, रीसेल वैल्यू। जैसे लैंड एंड हाउस प्रॉपर्टी, बहुत टाइम देखते हैं कभी कभी जैसे लैंड का, रियल एस्टेट का वैल्यू जो है वो गिर गया है, ये भी होता है, जैसे स्टॉक मार्केट के तरह भी होता है,
बट मैक्सिमम टाइम लैंड और ये सब का प्रॉपर्टी का दाम लगातार गिरते ही जाता है। कभी कभी ऐसा आया है बिकॉज ऑफ सम डिप्रेशन इन द इकोनॉमी रियल एस्टेट का दाम गिरा है, बहुत रेयरली। जैसे आई थिंक 2008 में ही हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली 2008 में या 12 में कभी हुआ था कि भारी गिरावट आया था इन रियल एस्टेट। देन बुलियंस क्या हो गया? गोल्ड एंड सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स हो सकता है उसमें। प्रेशियस स्टोन्स जैसे डायमंड, रूबी, एमरल्ड, ये सब का हमेशा ही अच्छा खासा प्राइस रहता है। अगर तुम्हारे पास आज डायमंड है तो उससे कुछ ये नहीं होता है कि विद टाइम कम हो जाता, बल्कि तुम बोलोगे कि अगर तुमको एक मुगल के टाइम का कोई डायमंड तुम्हारे पास है आज, तो वो तो एक प्रेशियस स्टोन भी हो गया, वेरस बहुत अच्छा उसका कीमत मिलेगा तुमको, क्योंकि पुराना है। मुगल के पास डायमंड कहाँ था मैम? अरे उस जमाने का, उन लोग के पास तो कुछ था नहीं, वो लोग सब हड़प के ले गया इंडिया भूखे से। नंगे लोग थे वो सब तो। हाँ, लेकिन इंडिया से तो निकाले है ना सब, हाँ। बाहर से आए और सब कुछ तो यही से गायब कर दिए। तो जो भी हो, अब जब तब आके पोजीशन में आ गए उन लोग, कितना 7 जनरेशन 8 जनरेशन में, तब तो बोल रहा है कि सब हम ही लोग का है। कहने वाले को क्या। अब क्या बोलना है। तो उसी लोग का ही कुछ अगर तुम्हारे पास रह गया बाई चांस, तुम्हारे कोई फोर फादर्स हो सकते हैं मुगल के टाइम में, कुछ मतलब उन लोग से रिलेशन था और कुछ इनाम में मिल गया, वो डायमंड अगर तुमको मिल जाए तो उसका बहुत वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। एंटिक्स हो जाता है। हाँ, एंटिक्स भी हो जाएंगे और प्रेशियस स्टोन्स में भी आ जाएंगे ना, दोनों तरफ तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। उस टाइम का चीज देखने के लिए सब दौड़ के आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर तुम्हारे पास है और गवर्नमेंट को पता चल गया तो वो जाके म्यूजियम में लगा देंगे। हाँ। सो आर्ट ऑब्जेक्ट्स में जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर्स, अगर देखोगे बहुत पुराना आर्ट्स पेंटिंग्स, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची का कोई पेंटिंग तुम्हारे पास है जो बहुत पुराने एकदम मिल ही नहीं रहा है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रीसेल वेरी करोड़ों में है। बाहर में तो बहुत सारा हम देख रहे थे कि लोग बहुत उसका ये है, किसी के पास रह गया है तो आप तो उससे कमा सकते हो। स्कल्पचर सिमिलरली अगर किसी का है, माइकल एंजेलो, ये लोग का बहुत अच्छा अच्छा स्कल्पचर्स है, वो अगर है। एंटिक्स हो गया, बहुत पुराने जमाने का कुछ भी तुम्हारे पास है, ये भी अच्छा है। बहुत सारा दुकान हम देखे हैं, कहीं पे ऐसा ऐसा है जो लोग एंटिक्स बेचते हैं, बहुत पुराने पुराने काल का वो है, और प्राइसेस बहुत लेते हैं। लेकिन वो अगर तुम अभी खरीद के भी बहुत सारा लोग रखते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज मान लो अभी है एंटिक्स तुम खरीदे हो, उसके बाद 20 साल के बाद वो और पुराना हो जाएगा, तो उसका वैल्यू जो है वो और बढ़ जाएगा। आगे जाके 20 साल के बाद देखोगे कि यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना ऐसा आ जाएगा कि रोबोट्स आ जाएंगे, ऐसा ऐसा हो जाएंगे। उस टाइम बोलेंगे ऐसा एंटिक्स बाप रे कब का है, तो उस टाइम तो वो सबका और वैल्यू बढ़ने वाला है। तो यही सोच के पीपल इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके, 10:54 हो गया, सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दिया है? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास क्या है तुम लोगों का? नहीं है। हाँ हाँ, सब्जेक्ट का। हेलो, यस पूजा, तो आवाज नहीं सब्जेक्ट का। पूजा, साउंड इज नॉट ऑडिबल, इज क्रैकिंग। अभी क्या बिजनेस वैल्यूएशन का क्लास है? यस मैम, बट का फैकल्टी चल रहा है। अच्छा, तो वो नहीं आए हैं, वो लेंगे 7 से लेंगे। ठीक है, मेरे से बात हो गया है, यू विल बी टेकिंग योर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम 7, तो आई विल कोऑर्डिनेट विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, सर के साथ बात कर लेंगे तो वो लेंगे। फिजिकली अभी यहाँ नहीं है, एक्चुअली आएंगे भी बाद में, तो जहाँ पे है वहीं से ही तुम लोग का क्लास होगा फ्रॉम 7 तारीख। मतलब अब तो हो ही गया है, कल भर ही क्लास होगा, 5 तारीख नहीं होगा। मंडे से यू विल बी टेकिंग योर क्लासेस। ठीक है, आज लास्ट ही क्लास हम लोग का, आज एक ही क्लास है मुझे। अच्छा, नेक्स्ट कोई भी क्लास कोई भी क्लास IDF नहीं है।
हाँ तो उनका एक वैकेंसी लगता वो है। भी 7-8 तारीख से ही स्टार्ट होंगे। और तो तुम लोग का जो मार्केटिंग वाले हैं उन लोग का भी तो मार्केटिंग का कुछ कोर पेपर जो है वो यूज होगा। मार्केटिंग वाले का एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है आज। नहीं आज नहीं है, नो मैम। कल था। आज है मुझे लग रहा है, चेक योर रूटीन वंस अगेन। नहीं यस है, मैम, नहीं है, आज नहीं है। मैम कल था। कल था। तो देख लेना, या जो लोग एचआर भी लिए हैं उसका श्वेता मैम का भी पेपर है कि नहीं है, चेक इट। नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बैठो। मेरा अब इसके बाद एक क्लास है, मैं क्लास लेके तुरंत तुम लोग के क्लासरूम में असाइनमेंट जो है डाल देने वाली हूँ, और सारा दिन उसको यूटिलाइज करो इन प्रिपेयरिंग दैट, ठीक है। ओके ओके। हाँ, क्योंकि वो उसका प्रिपरेशन का टाइम जब आएगा, एक सेकेंड, प्रिपरेशन का उस पे मेरे ऑलरेडी मैंने स्लॉट डाला हुआ है। आई विल आल्सो गिव यू द टाइम, किस दिन मैं उसके ऊपर प्रेजेंट डिस्कशन करूंगी। थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा बिकॉज इट इज इन ग्रुप्स, एक ही दिन मैं रखी हूँ, और उस दिन जल्दी से बोल देना है। टाइम आई विल गिव यू ऑन द क्लासरूम। उस टाइम के दिन कोई नहीं बोलना चाहिए कि मेरा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं हुआ है, ठीक है। सारा ग्रुप प्रेजेंट कर लोगे क्योंकि ग्रुप मेंबर्स है, किसी को दिक्कत हुआ है तो टेक द हेल्प फ्रॉम अदर्स। ज्वाइंटली करना है, उसमें सारे पीपल का उसके उसके अंदर में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप मेंबर बनाया है बाकी नहीं बनाया है, ठीक है। मैं पूछूंगी उस टाइम मुझे पता चल जाएगा। मार्क्स भी तुमको फिर उसी हिसाब से मिलेगा। सबको सीखना है अच्छे से, सेकेंड ईयर अच्छे से करो सो दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे कॉलेज से है टीपीओ, नीरू मैम, ये लोग तो है, कोशिश कर ही रहे हैं। आई फ्रॉम माय इंडिविजुअल लेवल आई विल आल्सो ट्राई। तो अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं या मेहनत नहीं की है। वो लोग क्या देखते हैं, तुम्हारा बेसिक कंसेप्शन क्लियर है कि नहीं है, तुम एफर्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, यही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ज्यादा वो लोग डिप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है। तुम्हारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कनेक्टिंग द थिंग्स, ये है कि नहीं है, बेसिक थिंग्स तुमको फाइनेंस में क्लियर है कि नहीं है, ये सारा चीज देखते हैं। उसके बाद तो मैम हाँ बोलो। कॉलेज में बैंक कौन कौन से आते हैं प्लेसमेंट के लिए? वो तुम नीरू मैम से पूछ लेना। नहीं, पिछली बार एचडीएफसी और अब देखो इस बार तो और नया है ना, अब आएंगे, क्योंकि अभी तुरंत ही शायद कुछ दिन में ही तुम लोग का सीवी बन जाएगा। जितना हम लोग से डिस्कस हुआ है, विद इन अ वीक तुम लोग को सीवी बना के दे देना है, और वो सीवी विल बी सेंड टू डिफरेंट कंपनीज। क्योंकि इस बार थोड़ा सा तुम लोग मतलब दिमाग में रखो कि थोड़ा कोरोना के चलते तुम लोग का पिछले साल का भी ये लोग भी थोड़ा इफेक्टेड हुए हैं। उन लोग का भी जो ऑफर लेटर आया था बहुत सारा जगह पे डिले भी हो गया है, कोई कोई जगह पे वो लोग देने के बाद भी फिर वापस कर दिया है। ये सबको मालूम है कि अभी जॉब का जो है थोड़ा सा जॉब मार्केट अभी अप एंड डाउन चल रहा है। तो अब क्या है तुम लोग का, होपफुली हम लोग सोच रहे हैं कि एक साल आते आते काफी हद तक सुधार हो जाएगा। तो अभी से ही इसीलिए ट्राई करना है, और तुम लोग के तरफ से पूरा एफर्ट आना चाहिए, ठीक ना। टाइम टू टाइम मैं भी बताते रहूंगी, जहां जहां पे भी ओपनिंग होगा ग्रुप में आई विल शेयर कि वहां पे तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मेरा भी जो कॉलेज है एनआईटी से, वहां पे भी उन लोग का प्लेसमेंट ऑफिस के साथ मेरा है ऑलरेडी ग्रुप में। तो वहां पे भी अगर ओपनिंग का आ रहा है, कोई भी दे रहा है, तो आई विल शेयर दैट विद यू। ओके, चलो आज टाइम हो गया है। गुड डे। कल है मेरा आईआरएम का क्लास है, तो सी यू टुमारो। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय मैम, थैंक यू। बाय 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 बाय।